پاکستان اس وقت ایک بڑی اہم تبدیلی کے دہانے پر ہے۔ جیولوجیکل سروے میں پاکستان کے ساحل کے بالکل قریب تیل اور گیس کے ذخائر دریافت ہوئے ہیں، جو دنیا کے سب سے بڑے تیل و گیس کے ذخائر میں سے ایک ہو سکتے ہیں۔ پاکستان کے لیے یہ غیر استعمال شدہ دولت کا ایک نیا گیٹ وے ہو سکتا ہے۔ ابتدائی اندازوں کے مطابق یہ ذخائر پاکستان کو توانائی پیدا کرنے والا ایک بڑا ملک بنا سکتے ہیں۔ اگر سب کچھ منصوبہ بندی کے مطابق ہوا تو ایک دہائی کے اندر پاکستانی پانیوں میں آف شور پلیٹ فارمز پھیل جائیں گے، جس سے اربوں ڈالر کی آمدنی ہوگی، اور یہ دریافت ایک اہم وقت میں سامنے آئی ہے، ایک ایسے وقت میں جب پاکستان تقریباً دیوالیہ پن کے قریب پہنچ چکا ہے۔ پاکستان اس وقت اپنے خام تیل کا تقریباً 85% اور قدرتی گیس کا 30% باہر کی دنیا سے امپورٹ کرتا ہے، جس سے اسے بجٹ خسارے میں ہر سال اربوں ڈالر کا نقصان اٹھانا پڑتا ہے، اور اسی وجہ سے IMF نے سخت مالی پابندیاں بھی عائد کر رکھی ہیں، جس کی وجہ سے 2021 سے اب تک بجلی کی قیمتوں میں 150% اضافہ ہوا ہے۔ نتیجتاً بہت سی پاکستانی صنعتوں میں فیول ریشننگ معمول بن گئی ہے، جس کی وجہ سے ملک کی پیداواری سطح میں بڑی کمی واقع ہوئی ہے۔ ٹیکسٹائل کے شعبے میں فیول ریشننگ کی وجہ سے ایکسپورٹ آرڈر میں $1 بلین سے زائد کی کمی واقع ہوئی ہے۔ انرجی نیڈز کو پورا کرنے کی جدوجہد نے پاکستان کی بری حالت کر دی ہے۔ غیر ملکی انویسٹمنٹ میں کمی آئی ہے اور اخراجات میں ڈرامائی طور پر اضافہ ہوا ہے۔ اس کے علاوہ کرپشن، سیکیورٹی اور بیوروکریسی کی نااہلی نے پاکستان کے آپشنز کو محدود کر دیا ہے۔ تاہم تیل اور گیس کی نئی دریافت چیزوں کو تبدیل کر سکتی ہے۔ یہ پاکستانیوں کے لیے امید کی ایک کرن ہے، بھلے ہی یہ امید سمندر کی تہ میں چھپی ہوئی ہے۔ جنوری 2023 میں لاکھوں پاکستانیوں کے گھر اس وقت اندھیروں میں ڈوب گئے جب ملک کو تاریخ کی سب سے بڑے الیکٹریسٹی بریک ڈاؤن کا سامنا کرنا پڑا۔ نیشنل گرڈ میں ایک رینڈم فلکچویشن کا نتیجہ تھا، لیکن بہت سے پاکستانیوں کے لیے بجلی کی یہ بندش ایک کلیئر وارننگ تھی۔ دراصل کئی دہائیوں کی ناقص پالیسی سازی، بڑے پیمانے پر کرپشن، سال کی قدرتی آفات اور طویل مدتی منصوبہ بندی کے فقدان نے اسلام آباد کی بجٹ مینج کرنے کی صلاحیت کو کمزور کر دیا ہے۔ لیکن پاکستان ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا۔ آزادی کے وقت پاکستان توانائی کے ذخائر کے لحاظ سے دنیا کے امیر ترین کنٹریز میں سے ایک تھا۔ کوئلے اور قدرتی گیس کے ذخائر کی آمدن سے اسلام آباد نے اپنی آزادی کی پہلی ہی دہائی میں ہائیڈرو الیکٹرک ڈیمز اور ایٹمی بجلی گھروں کی تعمیر کے لیے اہم فنڈنگ اکٹھا کر لی تھی۔ آنے والے سالوں میں پاکستان کی آبادی میں ریپڈ برسٹ یعنی 5 گنا اضافہ ہوا، اور اسی طرح اس کی ضروریات میں بھی اضافہ ہوتا گیا۔ 1990 کی دہائی سے حالات زیادہ خراب ہوئے۔ حکومت ریپڈ اربنائزیشن کو برقرار نہیں رکھ سکی اور موجودہ بنیادی ڈھانچہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے لگا۔ اسلام آباد نے الیکٹریسٹی ڈیفالٹ کو روکنے کے لیے انرجی بروکر سے رابطہ کیا، لیکن ایسا کرتے ہوئے ملک کو قرضوں کے چکر میں پھنسا دیا۔ سیاسی استحکام برقرار رکھنے کے لیے پاکستانی حکومتوں نے انرجی کمپنیز کو سبسڈی دینے کا وعدہ بھی کر دیا تاکہ صارفین کے لیے قیمتوں کو ایک مقررہ شرح پر رکھا جا سکے، لیکن یہ ایک ایسا وعدہ تھا جو پورا نہیں ہو سکا۔ لہٰذا جب حکومت سبسڈی کی ادائیگی سے محروم ہو گئی تو انرجی کمپنیاں اپنے انفراسٹرکچر کو برقرار نہیں رکھ سکی اور فیول امپورٹ کرنا شروع کر دیا۔ آج پاکستان اپنی قدرتی گیس کا 30% اور خام تیل کا 85% بیرون ممالک سے امپورٹ کرتا ہے، جس سے ریاست کو سالانہ $17.5 بلین کا نقصان ہوتا ہے، جس سے ملک بھر میں سماجی بے چینی میں اضافہ ہوا ہے۔ ایسے یہ IPPs کے ذریعے امپورٹڈ آئل سے کرائے کی مہنگی بجلی بنانے کے منصوبوں کے پیچھے کون سی سیاسی جماعتوں اور حکومتوں کا ہاتھ ہے، اور یہ انڈیپینڈنٹ پاور پلانٹس کس طرح پاکستان کو لوٹ رہے ہیں، اس پر الگ سے ایک ڈیٹیل ویڈیو بنا چکا ہوں، جسے آپ یہاں پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ ڈسکرپشن میں موجود اس ویڈیو لنک پر کلک کر کے بھی آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ بیک ٹو آور مین ٹاپک، یوکرین اور غزہ کے تنازعات نے جلدی پر تیل کا کام کرتے ہوئے انرجی پرائسز میں بڑا اضافہ کر دیا ہے۔ اگر انفلیشن اور بڑھتی ہوئی ڈیمانڈ کو ایڈجسٹ کیا جائے تو اگلے 7 سالوں میں پاکستان کی تیل اور گیس کی سالانہ امپورٹ کی لاگت $17.5 بلین سے بڑھ کر $31 بلین تک پہنچنے کی توقع ہے۔ پاکستان کے لیے بڑے پریشان کن نمبرز ہیں۔ ملک کے موجودہ ڈیفنس بجٹ سے بھی 3 گنا بڑا اضافہ ہے۔ بڑھتے ہوئے قرضوں اور آسمان کو چھوتی قیمتوں کو کنٹرول کرنے سے قاصر پاکستان پر ہر وقت اب دیوالیہ پن کا خطرہ منڈلا رہا ہے۔ کے بعد ایک پاکستان کی صنعتیں بند ہو رہی ہیں۔ مثال کے طور پر ٹیکسٹائل کا شعبہ جو پاکستان کی 60% ایکسپورٹس کا ذمہ دار ہے، انرجی کرائسس کی وجہ سے فل کیپیسٹی پر کام کرنے سے قاصر ہے۔ پاکستانی صارفین کو اس وقت بجلی کی کمی کا سامنا ہے، اور وہ بھی انتہائی زیادہ قیمت پر۔ صرف گزشتہ 3 سالوں میں بجلی کی قیمتوں میں اس قدر ڈرامائی طور پر اضافہ ہوا ہے کہ پاکستان کے 240 ملین شہریوں میں سے بہت سے پروٹیسٹ کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں، اور یہ اب تک کی بدترین صورتحال ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود اسلام آباد میں معاشی بحالی کی امید بڑھ گئی ہے۔ ایک نئی اپرچونٹی کو نئی لائف لائن کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ ایک حالیہ جیولوجیکل سروے میں 240 ایسے مقامات کی نشاندہی کی ہے جہاں ممکنہ طور پر خام تیل اور قدرتی گیس کی بڑی مقدار موجود ہو سکتی ہے۔ اب یہاں $1 ملین سوال یہ ہے کہ کیا یہ دریافت گیم چینجر ثابت ہو سکتی ہے؟ پاکستانی حکام یقیناً ایسا ہی سوچتے ہیں، وہ اسے بلیو واٹر اکانومی کے نام سے بیان کر رہے ہیں۔ اگرچہ اس دریافت کا درست مقام اور سائز ابھی تک ظاہر نہیں کیا گیا ہے، لیکن سرکاری اندازوں کے مطابق یہ بلیو واٹر ریسورسز دنیا میں چوتھے سب سے بڑے ذخائر ہیں۔ امریکن انرجی انفارمیشن
एडमिनिस्ट्रेशन ने ईरान को 209 बिलियन बैरल के साथ तीसरा सबसे बड़ा और कनाडा को 70 बिलियन बैरल तेल के ज़खायर के साथ चौथा सबसे बड़ा मुल्क करार दिया है। लिहाजा पाकिस्तान की तखमीना पैदावार इन दोनों के दरमियान कहीं भी हो सकती है। अगर इसे तिजारती तौर पर काबिल अमल बनाया जाए तो इस्लामाबाद की किस्मत बेहतर हो सकती है। इसका एनर्जी इंपोर्ट बिल रिवर्स हो सकता है, जिससे हासिल होने वाले बिलियंस ऑफ डॉलर्स कहीं और इन्वेस्ट किए जा सकेंगे और इसके नतीजे में पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर कई दिहाइयों की कमी के बाद दोबारा मुस्तहकम हो सकेंगे। इमर्जिंग ब्लू वाटर इकोनॉमी से पैदा होने वाली सरगर्मी दीगर शोबों में भी फैल जाएगी, जिससे कंस्ट्रक्शन, लॉजिस्टिक्स और एनर्जी रिसोर्सेज में तेजी आएगी। इसके अलावा बलूचिस्तान, सिंध और केपी जैसे छोटे सूबों में बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर से मुल्क में ज्यादा इस्तेहकाम आएगा। नए दरियाफ्त होने वाले ज़खायर को हासिल करने के लिए पाकिस्तान के चीन के साथ शराकत दारी करने का सबसे ज्यादा इम्कान है, क्योंकि चीन के पास इस तरह के वेंचर को आगे बढ़ाने के लिए महारत, फंडिंग और सियासी अज़म भी मौजूद है। चीन पहले भी पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर ट्रांसपोर्टेशन, एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबों में अरबों डॉलर की सरमायाकारी कर चुका है, जिसे सीपैक यानी चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है। तहम हालिया बरसों में बीजिंग के इस फ्लैगशिप मंसूबे पर काम काफी सुस्त हो गया है, मगर इसके बावजूद पाकिस्तान की तेल और गैस की दरियाफ्त चीनी मफादात की भी तजदीद कर सकती है, जिससे दोनों कंट्रीज में माशी तरक्की बढ़ेगी और पाकिस्तान में फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी वापस आएगी। और सबसे बढ़कर यह सब डेवलपमेंट एक ऐसे वक्त में हो रही है जो पाकिस्तान के लिए मजीद मौके पैदा कर सकता है, क्योंकि मगरिब की जानिब से रूसी तेल और गैस कंपनियों पर पाबंदियां आयद किए जाने और यमनी हौसियों की जानिब से रेड सी में समंदरी नकलो हमल को रोकने के बाद इंटरनेशनल सप्लाई चेन्स और एनर्जी मार्केट्स खतरे में हैं। इससे भी बढ़कर यह सब कुछ ऐसे वक्त में हो रहा है जब बैनुल अक़वामी बरादरी रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ मुंतकिल होने का अहद कर चुकी है। इस अमल में कुदरती गैस सबसे अहम है। अगर पाकिस्तान कामयाबी के साथ अपने ज़खायर हासिल कर लेता है तो वो इंटरनेशनल एनर्जी मार्केट में एक अहम खिलाड़ी बन सकता है। इंटरनेशनल मार्केट नई सप्लाई चेन्स के लिए बेचैन है और पाकिस्तान इस खला को पूरा करने में मदद कर सकता है। तेल और गैस की दरियाफ्त के वसी इम्कानात इस्लामाबाद के लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं, लेकिन इस सब के बावजूद भी पाकिस्तान की मुश्किलात ताहाल कम नहीं हुई हैं, क्योंकि पाकिस्तान के हाइड्रोकार्बन ज़खायर का आलमी सतह पर खैर मकदम नहीं किया गया है और तेल की ज्यादातर बड़ी कंपनियों ने इस खबर पर कोई खास दिलचस्पी जाहिर नहीं की। इसके बरअक्स हालिया बरसों में माहिरीन और इन्वेस्टर्स पाकिस्तान से मुसलसल दूर भाग रहे हैं। मिसाल के तौर पर शेल, टोटल एनर्जीज और कैन जैसी तेल की बड़ी कंपनीज ने पाकिस्तान में अपने ऑपरेशंस बंद कर दिए हैं। जून 2023 में तेल और गैस के 18 ब्लॉक्स की रियासती नीलामी में इंटरनेशनल बिडर्स ने कोई खास दिलचस्पी जाहिर नहीं की। सिर्फ 2 लोकल कंपनियों, एक प्राइवेट और एक सरकारी मिल्कियत वाली कंपनी ने सिर्फ 3 ब्लॉक्स के लिए बोली लगाई। बाकी 15 ब्लॉक्स एक भी बोली हासिल करने में नाकाम रहे। हकीकत यह है कि कोई भी बड़ी कंपनी पाकिस्तानी तेल और गैस की खुदाई करने में दिलचस्पी नहीं दिखा रही, जिसकी वजह सिक्योरिटी थ्रेट्स है। बहुत से कारोबारी इदारों के लिए पाकिस्तान में मुनाफा से ज्यादा खतरा महसूस होता है। उन इलाकों में जहां कंपनियां कारोबार करती हैं, मुलाजमीन और असासों की हिफाजत को बरकरार रखने के लिए काफी फंडिंग की जरूरत होती है। इसके बाद मुनाफा इन्वेस्टमेंट के लिए काबिल कबूल हद से नीचे गिर जाता है और ये सिक्योरिटी खतरात ज्यादा अहमियत हासिल कर जाते हैं। मार्च 2024 में पाकिस्तान के शुमाल मशरकी इलाके में एक टेररिस्ट हमले में 5 चीनी इंजीनियर्स हलाक हो गए थे। उसी महीने बलोच अलैदगी पसंद कुव्वतों ने चीन के जेरे इंतजाम बंदरगाह गवादर के करीब तंसीबात पर भी हमला किया और पिछले ही महीने यानी अक्टूबर में कराची एयरपोर्ट के करीब होने वाले धमाके में 2 चीनी इंजीनियर्स हलाक हो गए थे। ये इस किस्म के सिक्योरिटी खतरात हैं जो मुमकिन इन्वेस्टर्स को दूर रखते हैं। सब में पाकिस्तान के लिए यकीनन मौके भी मौजूद हैं। पाकिस्तान लोकल इन्वेस्टर्स को नए हाइड्रोकार्बन ज़खायर की एक्सप्लोरेशन में इन्वेस्टमेंट करने के लिए इंकरेज कर सकता है। गुज़श्ता दिहाई में पाकिस्तान के रियल स्टेट सेक्टर में बड़ी इन्वेस्टमेंट मौजूद थी, जो कि अब बहुत सुस्त हो चुकी है। पाकिस्तान अपनी रियल स्टेट की तमाम इन्वेस्टमेंट का रुख इस जानिब मोड़ सकता है। इससे न सिर्फ पाकिस्तान हाइड्रोकार्बन की पैदावार में गैर मुल्की इन्हिसार और इस्तेहसाल से आजाद हो जाएगा, बल्कि रियल स्टेट की इन्वेस्टमेंट डाइवर्ट होने से पाकिस्तान के डिफॉरेस्टेशन और फूड सिक्योरिटी के खतरात भी काफी हद तक कम हो जाएंगे, जो कि इस वक्त पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मसला है। सिक्योरिटी के अलावा पाकिस्तान में एक और बहुत बड़ी पेचीदगी मौजूद है और वो है इसका मुसलसल सियासी अदम इस्तेहकाम। हर नई हुकूमत के इख्तदार में आने या पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के जरिए इख्तदार से जाने के बाद पहले से तयशुदा सियासी फैसलों को बगैर सोचे समझे उलट दिया जाता है। मिसाल के तौर पर इस दरियाफ्त से चंद माह कबल तुर्कमानिस्तान में आलमी मंडियों में अपनी मुकामी कुदरती गैस बरामद करने के लिए पाकिस्तान की गवादर बंदरगाह को इस्तेमाल करने में दिलचस्पी जाहिर की थी। ऐसा करने से तुर्कमानिस्तान को रूसी और ईरानी
जरसाई रास्तों पर इन्हिसार कम करने का मौका मिलेगा। मुज़ाकरात में एक ऑप्शन ये था कि तुर्कमेनिस्तान की कुदरती गैस पाकिस्तान के एनर्जी क्राइसिस को कम करने में भी मददगार साबित होगी। तेल और गैस के हालिया दरियाफ्त के बाद तुर्कमेनिस्तान के साथ मुआहदे को पसे पुश्त डाल दिया गया है। लिहाजा बढ़ती हुई करप्शन, नाकिस इंफ्रास्ट्रक्चर और सिक्योरिटी खतरात के अलावा पाकिस्तान में कारोबार करने वाले मुमकिना प्रोस्पेक्टर्स को एक मुसलसल जारी सियासी बहरान का सामना भी करना पड़ता है, जिससे उनके असासे रातों रात नेशनलाइज हो सकते हैं और बहुत से लोगों के लिए ये खतरात फवाइद से कहीं ज्यादा हैं। इन अ बिगर पिक्चर ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान की हाइड्रोकार्बन इंडस्ट्रीज को शुरू करने के लिए दरकार इब्तदाई वसाइल का इंतजाम किया जा सकता है। तलाश के मरहले के लिए पेशगी लागत $5 बिलियन के करीब है और इसमें 5 से 7 साल लग सकते हैं। ये काफी बड़ा जुआ है, लेकिन काबिले अमल है। लोकल इन्वेस्टर्स के अलावा भी चीन वाहिद मुमकिना इन्वेस्टर नहीं है। रूस, तुर्की और यहाँ तक कि अमेरिका भी इसमें शामिल हो सकते हैं। तुर्की खास तौर पर पेचीदा खतरे और बड़े मुनाफा वाले मंसूबों के लिए कोई अजनबी नहीं है। अभी हाल ही में अक्टूबर में तुर्कों ने ऑफशोर हाइड्रोकार्बन ज़खायर की मैपिंग के लिए सोमालिया के साहिल पर अपने एक्सप्लोरेशन फ्लीट को भेजा है। 5 से 10 साल के अंदर अंदर वहां से तेल निकलने लगेगा। पाकिस्तान की सूरत हाल सोमालिया से बहुत बेहतर है, इसीलिए इस्लामाबाद अपने ब्लू वाटर ज़खायर को तजारती तौर पर काबिले अमल बनाने के लिए मजबूत पोजीशन रखता है। इस मौका से फायदा उठाने के लिए इस्लामाबाद को सिर्फ इन्वेस्टर्स का एतमाद बहाल करने की जरूरत है। साजगार शराइत पर बातचीत करना होगी और सबसे अहम बात यह है कि पॉलिसी में तब्दीली के बगैर इन शराइत पर अमल करना होगा। इसीलिए पहले से मुकम्मल तैयारी के साथ किसी भी इन्वेस्टर के साथ बातचीत शुरू करना होगी। स्प्रेड हुए बगैर आगे बढ़ना होगा, वरना नतीजा IPPs के कॉन्ट्रैक्ट से कोई ज्यादा मुख्तलिफ नहीं निकलेगा और पाकिस्तान की किस्मत बदलने वाले यही हाइड्रोकार्बन ज़खायर गले का फंदा बनकर रह जाएंगे। इस सूरत हाल का सबसे अहम पहलू यह है कि पाकिस्तान के तेल और गैस के ज़खायर समंदर में मौजूद हैं, जिससे इस्लामाबाद अपनी साहली पट्टी के साथ साथ सिक्योरिटी थ्रेट्स के बगैर जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर कर सकता है, जिससे इब्तदाई इंफ्रास्ट्रक्चर को महदूद और काबिल इंतजाम इलाकों तक महदूद किया जा सकता है और सिक्योरिटी खतरात को कम किया जा सकता है। अगरचे खतरा बदस्तूर मौजूद है, लेकिन यह तरीकाकार पाकिस्तान के शुमाली और जनूब मगरबी इलाकों में तंसीबात की तोसी से कहीं ज्यादा महफूज होगा। इस तरह इन्वेस्टर्स का एतमाद बहाल करने में अहम कामयाबी हासिल की जा सकती है। आने वाले साल बिलाशुबा पाकिस्तान की तारीख के सबसे मुश्किल साल होंगे, जहां मुल्क का एनर्जी इंपोर्ट बिल तकरीबन दुगना होने की पेशगोई की गई है और इस्लामाबाद को इस बढ़ती हुई लागत के साथ पावर ग्रिड को चलाने के आसान तरीकों के बारे में सोचना होगा। पाकिस्तान के तेल और गैस के नए ज़खायर एक नई लाइफलाइन के तौर पर काम कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ उसी सूरत में जब सब कुछ जियोपॉलिटिकल स्टेज पर मुकम्मल तौर पर अलाइंड हो। गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि पॉलिसी मेकर्स को इस तरह की हाई स्टेक सिनेरियो में आमतौर पर दूसरे मौके जैसे ऑप्शन नहीं मिलते। ज्यादा है, लेकिन अगर ये कामयाब हो जाता है तो पाकिस्तान हाई ग्रोथ के साथ पीस एंड प्रोस्पेरिटी एंजॉय कर सकता है। दैट्स अ बिग इफ।